Namaskar. I am Professor Dr. Uttam Kumar Shukla, Department of Mathematics, Madhupur College, Madhupur, SKM University, Dumka. Today I am going to present a paper on establish the relationship amongst the lattice structure. This is the paper which was published in April 2020, and since then I start doing work on this field. So my understanding in this field is quite depend, and this is all because of blessing of my teacher, and I am very happy, and the Social Research Foundation is taken this invite of presenting paper which have earlier published, and I also like to thank Social Research Foundation and Social Research Foundation team, especially thanks the director of Social Research Foundation. We all are know that lattice theory is an independent branch of mathematics, has had a somewhat stormy existence for more than 100 years ago. Its origins are to be found in Boolean mid-19th century work in classical logic, and the success of what we now call Boolean algebra in this field led to late 19th century attempt at the formation of all of mathematics reasoning and eventually the mathematical logic. Lattices are ubiquitous in mathematics. The beauty and simplicity of abstraction and the ability to tie together seemingly unrelated pieces of mathematics are certainly applying to the mathematics as an artist. In introduction of new and non-trivial technique for the solution of outstanding problem. For example, in universal algebra is mathematically rewarding, and the discovery of new questions which become natural to us in the context of lattice theory undoubtedly interviewing. Through the vehicle of lattice theory, one can hope to contribute to progress in functional analysis by the study of vector lattice or the investigation of non-Boolean algebra, closely related in the work that have been done in quantum mechanism. And the special partially ordered set and lattice that arise there. Different types of work in the field is that being done in contributional theory, which where geometrical lattice have been used extensively by the Rota and his school in the investigation inspired by the Watney and began in the Dilwarts. The role played by distributive lattice in the development of lattice theory is both an important and interesting one. Boolean algebra and modular lattice have been with us since the last century. Since distributive lattice are weaker than the former or stronger than the latter, they have a history as old as the lattice theory. Distributive lattice have in a one sense come full circle is the scheme of things. Lattice theory began with Boolean algebra is a logic. Today there is a great deal of interest in non-Boolean distributive lattice which arise in non-classical logic. The study of distributive lattice has influenced the development of lattice theory in a different way as well. Many of properties which have been investigated by the lattice theories are weakened from the distributive. The obvious example is modality, which is done has led to the symmetric and semi-modular properties so useful of geometrical and combinational theory. In another direction of relation of competition and the weakening of distributivity have given rise to some generalization of Boolean algebra where properties such as orthomodular have been developed in the investigation of the functional analysis. My work and my paper is related to the lattice established relationship among the lattice structure. In this paper I have
introduce some new definition of lattice, just like a Heyting algebra, sub-algebra, orthomodular lattice, residuated lattice, and ortholattice. And also I am correlate the different types of lattice with the help of lattice's properties. They are very commonly and correlate with each other. Lattice are equal to each other. The beauty and simplicity of abstraction and the ability to tie together seemingly unrelated piece of mathematics. I have made a graph that show different types of lattice and their relationship. I think it may be help to study of lattice theory. It is also helps the student of GATE and NET examination. Lattice can be characterized as an algebra structure satisfying the certain axiomatic identities. Since the two definitions are equivalent, lattice theory draw on both order theory and universal algebra. Semi-lattice include lattice which is done include Heyting and Boolean algebra. This lattice structure admit all other theory as well as algebraic approach. Lattice theory as an independent branch of mathematics has had somewhat existence during the mid-19th century. It is studied in the mathematical discipline of order theory and abstract algebra. It contains a partially ordered set in which the every two elements have a unique supremum, at least join denoted by x join y, and a unique infimum greatest lower bound denoted by x meet y. A lattice L is complete when each of its subset x has least upper bound and greatest lower bound in L. Eventually, the dual of any lattice is lattice and the dual of any complement lattice is a complement lattice. With meet and join interchange any finite lattice or a lattice finite length of complete. The concept of a lattice dual group was first studied in depth in Dedekind by 1992. Definition: the Boolean algebra, a Boolean lattice, was defined as a complement distributive lattice. By the definition, such a lattice must contain universal O and I. X meet X complement equal to O and X join X complement is equal to I. Just like a set theory, complement of element A element A union complement of A. Lattice theory actually the part of the pure mathematics है. ये algebra and numbers थ्योरी से कोरिलेट पार्ट है. जिस प्रकार से हम लोग सेट थ्योरी में कहते हैं, क्या यदि एक ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए जस्ट लाइक अनदर देन द एलिमेंट ऑफ ए. लेटिस थ्योरी हम लोग प्राय दो एलिमेंट के साथ कोरिलेट करके चेक करते हैं. आइए, यदि हम इन सब चीज़ों को डिफिनेशन को अच्छे ढंग से समझने के लिए जो मेरा काम है या डायग्राम के थ्रू जो मैंने अपने पेपर में डिस्क्राइब किया है, जो स्टडी ऑफ लेटिस थ्योरी को बहुत ही इजी ढंग में कर देता है, उसी को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बोर्ड का सहारा ले रहा हूँ. जैसे लेटिस समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट फर्स्ट हेंसेट डायग्राम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. सपोज डेट करिए एक हमारा एलिमेंट है, एक स्ट्रक्चर है ए बी सी एंड डी. इसी स्ट्रक्चर से लेके हम आप लोगों को लेटिस समझाने की कोशिश करते हैं. लेटिस के ये प्रॉपर्टीज होता है क्या, उसमें एटलीस्ट वन लोअर बॉन्ड एंड वन ग्रेटेस्ट बॉन्ड बिलोंग करे. जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड जो है वह क्लोज्ड है. अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड जो है हमारा वह क्लोज्ड है, और
उसके साथ साथ किसी भी दो पेयर ऑफ एलिमेंट, जैसे जस्ट लाइक अ पेयर ऑफ एलिमेंट सी एंड डी, इस दोनों पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए हमारा जो है वो जहाँ पे मीट कर जो है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करे और हमारा जो है एक लिस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट करे। हमारा यहाँ पे देखिए सी जो है हमारा सी और डी को यदि हम लोग कंपेयर करें सी और डी एलिमेंट को, तो हम लोग पाते हैं क्या इसमें जो है सबसे पहले हमारा लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है एंड हमारा ग्रेटेस्ट बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। और सी और डी के लिए जो है हमारा आराम से जो है चेक कर पा रहे हैं कि हम लोग को लिस्ट अपर बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली हम लोगों के पास जो है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है ए और सी के लिए। डेट मीन्स ये स्ट्रक्चर को हम लोग लेटिस कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है हमारा, हम लोग जो देखते आए हैं चेन, मॉडर्न अलजेब्रा में चेन क्या होता है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें हमारा एलिमेंट 1 सपोज डेट करिए 2 एंड 3 एंड 4 है, सिक्वेंसली नेचुरल नंबर 1 to 4 है। यह स्ट्रक्चर में हमारा क्या है लोएस्ट बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है हम दोनों इस दो एलिमेंट को आपस में कंपेयर करें तो हमारे साथ इसमें जो है लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमारा लेटिस है। अब इस लेटिस के अंदर हमारा अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड, द एलिमेंट ऑफ द सेट आर फाइनाइट, दैट मींस द कॉल्ड इज द बॉन्डेड सेट। बॉन्डेड सेट हम लोग कब कहेंगे, जब इसके एलिमेंट आपस में फाइनाइट हो तो उसको हम लोग बॉन्डेड सेट कहेंगे। और जैसे एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं, सपोज दैट आर लेस देन इक्वल टू the symbol, it is nothing less than equal to, it is the symbol of partially ordered set. It is a symbol of partially ordered set. Let example are less than equal to the sets of all real number. That means क्या हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर हमारा 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा एंड -4 होगा। जस्ट लाइक +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा एंड +5 होगा, डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट अनडिफाइंड तक और -इन्फिनाइट तक होगा। क्या यह जो सेट है, सेट्स ऑफ रियल नंबर विच इज द पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू, क्या ये एक लेटिस है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक लेटिस है। दैट मीन्स द एनी स्ट्रेट लाइन इज द आल्सो लेटिस, एनी स्ट्रेट लाइन इज द आल्सो लेटिस। एंड क्या ये बॉन्डेड लेटिस है, क्या अनबॉन्डेड लेटिस है? हम देखिए यहाँ पे अपर बॉन्ड को हम लोग क्या इसके जो ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड तो मिल रहा है। यदि हम 1 और 0 के लिए चेक करें तो हमको 2, 3, 4, 5, 6 मैनी अपर बॉन्ड मिल रहा है। एंड सपोज दैट के लिए -1, -2 के लिए हम लोग चेक करते हैं तो लिस्ट अपर बॉन्ड भी मिल रहा है और ऊपर हम लोगों के लिए ऊपर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या ये सबसे लास्ट क्या ये बॉन्डेड है स्ट्रक्चर? जी नहीं, ये ऐसे डायग्राम जो है बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि हम लोग इसमें भी अपर बॉन्ड को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वो बता नहीं सकते हैं कौन सा एलिमेंट अपर बॉन्ड है और कौन सा एलिमेंट लोअर बॉन्ड है। इस तरह से हम लोग इसको जो कहते हैं, इसको हम लोग अनबॉन्डेड लेटिस कहते हैं। लेटिस स्टार्ट हमारा स्ट्रक्चर जो हुआ वेरी इजिली वे से हुआ और इस इजिली वे के साथ हम लोग किस आसान तरीके के साथ लेटिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज को जो है हम लोग आपस में डिफाइन कर सकते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ हेंस डायग्राम। अब सेकेंडरी हम लोग देखने जाते हैं सब लेटिस क्या होता है। सब लेटिस भी बताने के लिए बहुत ही इजी तरीका है। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये हेंस डायग्राम फिगर लेते हैं। डीएनए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में हमारा अपर बॉन्ड क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 1 फाइनाइट है। हमारा अपर बॉन्ड क्या इसमें एक सिंगल अपर बॉन्ड है? नहीं, हमारे इस स्ट्रक्चर में देखिए डी एंड ई 2 अपर बॉन्ड है। इसका हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। हमने पहले बताया था लेटिस को डिफिनेशन हम लोग ऐसे डायग्राम की तरफ से समझना चाहेंगे, तो उसमें हमारा एग्जिस्ट 1 एंड ओनली 1 अपर बॉन्ड एंड एग्जिस्ट 1 एंड ओनली 1 लोअर बॉन्ड करना चाहिए। तो ये हमारा जो सेट है A
बी सी डी एंड ई जो पार्शली ऑर्डर रिलेटेड रिलेशन पे है, यह सेट हमारा जो है लेटिस नहीं है। यदि सपोज डेट करिए इसी लेटिस में हम लोग एक इसका जो है सबसेट ले ले, जो हमारा एलिमेंट सबसेट का होगा वह होगा सपोज डेट करिए ए बी सी एंड डी। ये एलिमेंट जो हम ए बी सी डी लिए, क्या यह एलिमेंट को हम लोग एक सेपरेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल। देखिए ए बी सी एंड डी ये हमारा एक सेपरेट स्ट्रक्चर बनता है। ये सेपरेट स्ट्रक्चर हमारा बनता है और इस सेपरेट स्ट्रक्चर में जो है क्या यह लेटिस है? यस। इसके लिए हमारा एक ओनली ऑन वन अपर बॉन्ड जो हमारा एक मिल रहा है कॉर्नर, और नीचे भी हमारा एक कॉर्नर मिल रहा है लोअर बॉन्ड का, ओनली वन। तो ये स्ट्रक्चर जो है हमारा बॉन्डेड है। लेटिस तभी बात करेंगे जब वो स्ट्रक्चर हमारा बॉन्डेड हो, उसमें जो है वन। अब यहाँ पर सवाल आता है क्या यह स्ट्रक्चर लेटिस है? हमारा यहाँ पे दो एलिमेंट हम लोग चेक करते हैं बी और सी। ये दोनों बी एलिमेंट और सी एलिमेंट देखिए मीट कर रहा है डी पे, और नीचे जो है इसका बॉन्डेड एग्जिस्ट कर रहा है ए पे। इसका मतलब ये दो पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए जो है हमारा स्ट्रक्चर बॉन्डेड हो रहा है, और इसमें जो है हमारा बी और डी के लिए जो है हमारा लिस्ट अपर बॉन्ड बी है, और डी जो है ए और बी के लिए जो है हमारा जो है बी है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। दैट मीन्स यह स्ट्रक्चर जो है लेटिस है। अब किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी सेट, यह सेट जो ए बी सी डी ई का था, इस सेट के अंदर जो है हमारा सबसेट बना ए बी सी डी एंड इसी तरह सिमिलरली ए बी सी एन ई। ये दो प्रकार के जो सेट बने, इस सेट ये दो प्रकार के जो सबसेट बने, यदि ये दोनों सबसेट यदि लेटिस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है तो उसी को हम लोग सब लेटिस कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल उठाए हम लोग, क्या एक लेटिस जो एक स्ट्रक्चर बॉन्डेड किया, उस स्ट्रक्चर में लिस्ट अपर बॉन्ड, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। अब उस सेट के अंदर जो है हमारा दो सेट बना इस फिगर में। ये जरूरी नहीं था कि ये फिगर हमारा लेटिस था, ये फिगर हमारा स्ट्रक्चर लेटिस को सेटिस्फाई करता और उसके अंदर का सबसेट लेटिस को सेटिस्फाई करता तो भी उसको हम लोग सब लेटिस कहते। और सिमिलरली यदि हम लोग ये स्ट्रक्चर नहीं सबसेट लेटिस को फॉलो करें तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कहेंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, क्या कंप्लीमेंटेड लेटिस क्या होता है? व्हाट इज द कंप्लीमेंटेड लेटिस? अब कंप्लीमेंट लेटिस सिमिलरली है जिस प्रकार से हम लोग ये जानते थे, क्या ए यूनियन, आई एम ऑल्सो एक्सप्लेन इन द माई introduction of the lattices also, okay, just like a lattice is the properties is similarly as a structure in just like a set theory. A suppose that element A and union of its complement is universal set, just like A intersection of A complement is equal to phi. सीरीज का ऑप्शन है। हमारा ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक लेटिस में भी हमारा जो है ए मीट, जिसको हम लोग सुप्रीमम कहते हैं, ए मीट ए कंप्लीमेंट इक्वल टू हमारा जो है आई होता है। आई इज द अपर बॉन्ड एंड ए मीट ए कंप्लीमेंट इक्वल टू हमारा ओ होता है, इट इज अ लोअर बॉन्ड। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर यूनियन और यहाँ पर हमारा लेटिस में जो है सुप्रीमम एंड इन्फीमम, जिसको जस्ट हम लोग मीट एंड ज्वाइन के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा जो है लेटिस का होता है। अब कंप्लीमेंट लेटिस के लिए ही हम लोग सेम सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। क्या यह स्ट्रक्चर कंप्लीमेंट है? जो हमारा वर्क है, मेरा वर्क, वो वर्क यह है
क्या यदि ए बी सी एंड डी ए सेम फिगर we have we know that the lower bond the complement of lower bond is upper bond and the complement of upper bond is lower bond. मतलब अपर बॉन्ड का जो है लोअर बॉन्ड का जो कंप्लीमेंट है वो अपर बॉन्ड होगा और अपर बॉन्ड का जो कंप्लीमेंट है वो क्या होगा, लोअर बॉन्ड होगा. लोअर बॉन्ड का कंप्लीमेंट अपर बॉन्ड होगा एंड कंप्लीमेंट ऑफ डी जो है वो हमारा लोअर बॉन्ड होगा. इसके अलावा इसमें यदि बी है, क्या ये बी जो है हमारा ये किसी अनदर एलिमेंट पेयर ऑफ एलिमेंट के साथ क्या हमारा एक अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड देता है. सपोज डेट बी एंड सी को लेते हैं. हमारा बी एंड सी जो है इस दोनों में से हम लोग इसको कहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम अपर की साइड मिलता है, ये हमारा फर्स्ट टाइम जाके डी पे मिलता है. सिमिलरली ये हमारा ए पे जाके नीचे साइड मिलता है. मतलब लोअर बॉन्ड इस ए और बी और सी का जो है ए हुआ और बी एंड सी का जो है अपर बॉन्ड डी हुआ. यदि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड किसी दो पेयर ऑफ एलिमेंट का मिलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट. मतलब दैट मीन्स बी कंप्लीमेंट इक्वल टू सी एंड सिमिलरली सी कंप्लीमेंट इक्वल टू डी. अब वैसा लेटिस जिसमें कंप्लीमेंट ऑफ एलिमेंट बिलोंग करता हो उसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंटेड लेटिस. अब यहां पर आता है सेकेंडरी डिफिनेशन. एक और फिगर के साथ मैं आपको इसको बताना चाहता हूं. ये फिगर ऊपर का है, जस्ट एक एग्जांपल. सेकेंड ये डायग्राम लिए, इसमें एलिमेंट हमारा ए बी सी डी ई एंड एफ और एलिमेंट जो हमारे के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा है. इसमें हमारा बी का कंप्लीमेंट सी हो गया, ए का कंप्लीमेंट डी हो गया, डी का कंप्लीमेंट ए हो गया, ए का कंप्लीमेंट ई हो गया, ई का कंप्लीमेंट ए हो गया एंड ए का कंप्लीमेंट एफ हो गया, एफ का कंप्लीमेंट बी हमारा जो है ए हो गया. जैसे एफ और ए मीट कर रहा है लोअर पे, एफ और ए मीट कर रहा है अपर पे. मतलब हर दो पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए यहाँ पर भी जो है हमारा क्या हो रहा है, अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है स्ट्रक्चर में. इसलिए इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस कंप्लीमेंटेड लेटिस कहेंगे. अब कंप्लीमेंटेड लेटिस वैसा लेटिस जिसमें कंप्लीमेंट जो है. अब आता है सेकेंडरी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस. हम अपने पेपर में डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस को डिफाइन किए हैं. A lattice is said to be a distributive lattice if A, B, C belongs to L, a lattice. Then a property is A join B meet C equal to A join B meet A join C. Similarly, A meet B join C is equal to A meet B join A meet C. इस प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करेंगे उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस कहते हैं. यह प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने में हम लोगों को इस सवाल के लिए हम लोग चेक करना चाहते हैं क्या यह लेटिस डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या नहीं है. तो अब इसके लिए हमारे प्रॉपर्टीज के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या होगा, ए ज्वाइन बी मीट सी जो है वह हमारा होना चाहिए ए ज्वाइन बी एंड ए ज्वाइन सी. एंड सिमिलरली प्रॉपर्टीज नंबर 2 हमारा जो है ए मीट बी ज्वाइन सी इक्वल टू जो हमारा होना चाहिए ए मीट बी एंड ज्वाइन ए मीट सी. अब इस प्रॉपर्टीज को हम लोग चेक करते हैं. एट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का रूप देखते हैं. बी ज्वाइन सी के लिए हम हमारा बी मीट के लिए ए होगा, ए ज्वाइन ए इक्वल टू हमारा क्या होगा ए होगा. सिमिलरली ए ज्वाइन बी के लिए हमारा अपर बॉन्ड लेंगे. ज्वाइन में हम लोग हमेशा अपर बॉन्ड लेते हैं तो बी हो गया. और सिमिलरली ए ज्वाइन सी में जो है हम लोग अपर बॉन्ड सी लेंगे. बी मीट सी का जो है हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जो है हमारा बी में ज्वाइन के लिए ए हो जाएगा. इसका मतलब प्रॉपर्टीज ए और सिमिलरली प्रॉपर्टीज बी फॉलो करता है. लेकिन बट हम लोग बहुत इजीली वे से हेसेन डायग्राम के थ्रू जो मेरा अनदर वर्क में है जिसमें हम कोरिलेट की है प्रॉपर्टीज, उसके थ्रू से हम लोग इजीली वे में बता सकते हैं. यदि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर ओनली एटलीस्ट वन ऑफ द एक एलिमेंट के लिए उसका एक ही कंप्लीमेंट लेटिस होगा उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस.
इस एलिमेंट में हमारा 1 बी और सी के लिए जो है हमारा कंप्लीमेंट एक हो रहा है, इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस कहेंगे। सिमिलरली हम लोग बुलियन लेटिस उसको या बुलियन अलजेब्रा उसको कहते हैं, ऐसा कोई लेटिस जिसके अंदर वो कंप्लीमेंट भी हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस भी हो, उसी को हम लोग जो है बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा में हमारा लेटिस जो है वह जो है कंप्लीमेंटेड हो और साथ ही साथ उसका जो है ओनली एक एलिमेंट के लिए जो है हमारा एक ही कंप्लीमेंट हो, ज़्यादा नहीं हो। जैसे सेकंड नंबर या फर्स्ट नंबर फिगर में हम लोग देख सकते हैं क्या हमारे यहाँ ए के लिए जो है कंप्लीमेंट डी भी है, ए के लिए कंप्लीमेंट ई भी है, ए के लिए कंप्लीमेंट एफ भी है। इस प्रकार से हमारा एक एलिमेंट के लिए मोर देन वन कंप्लीमेंट इस स्ट्रक्चर के अंदर बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली डी के लिए हमारा कंप्लीमेंट ए भी है और ई के लिए हमारा कंप्लीमेंट ए है। ए और सी के लिए हमारा कंप्लीमेंट जो है नहीं बिलोंग कर रहा है। डेट मीन्स ए के लिए हमारा कंप्लीमेंट ए डी ई और एफ कर रहा है। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में जो है मोर देन वन कंप्लीमेंट बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह स्ट्रक्चर जो है ना ही डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और ना ही बुलियन लेटिस होगा। जिस स्ट्रक्चर में कंप्लीमेंटेड लेटिस ओनली 1 एंड 1 हो, एक एलिमेंट के लिए उसका एक ही कंप्लीमेंट बिलोंग करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल नंबर 2, इस एग्जांपल में जो है हमारा बी और सी के लिए जो है दूसरा कोई कंप्लीमेंट नहीं है, बी का कंप्लीमेंट ओनली सी है। सिमिलरली ए का कंप्लीमेंट डी है, डी का कंप्लीमेंट ए है और सी का कंप्लीमेंट बी है। मतलब ओनली ऑल के लिए जो है ओनली 1 कंप्लीमेंट बिलोंग कर रहा है इस स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर को जो है हम लोग कहेंगे बुलियन अलजेब्रा। इस प्रकार से हम हमारे काम में हम लोग देख रहे हैं कि सभी प्रॉपर्टीज एलिटीज के अंदर थोड़ा सा आप प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा सा किसी प्रॉपर्टीज को डिक्रीज कर दीजिए तो वो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। इसी प्रकार से हमने जो अपने पेपर में एक स्ट्रक्चर, एक चार्ट ड्रॉ किया है जो स्टूडेंट को, वैसे स्टूडेंट दे हैव टू प्रिपेयर ऑफ गेट एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो द रिसर्च स्कॉलर ऑफ their topic belongs to their topic in interesting lattice theory and number theory and algebra. These types of researchers have very useful this structure. We are here. Lattice is also semi-lattice. Semi-lattice poset a partial order set. They have the properties reflexive, antisymmetric and transitive. और वैसे स्ट्रक्चर जो पोसिट होगा इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग जो है लेटिस, जिसमें यदि हमारा एलिमेंट फाइनाइट हो गया तो वह बॉन्डेड लेटिस हो गया, और जिसमें हमारा जो है हैटिंग अलजेब्रा, जिसको मैं अपने पेपर में डिफाइन भी किया हूँ, हैटिंग अलजेब्रा आर द एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस हैविंग एटलीस्ट सम मेंबर linking complement. Every element X have Heyting algebra has on the other hand a pseudo complement also denoted by dash X, and the pseudo complement is the greatest element such that A mid join is equal to 0 if the pseudo complement of every element of the Heyting algebra is in the fact of complement. Then the Heyting algebra is a fact of Boolean algebra. Just like properties Heyting algebra, lattice they have the distributive lattice and have one element every. Then this is called also. Similarly, I am defined the totally ordered set, distributive lattice, modular lattice, semi-lattice, geometrical lattice, matrix of lattice, algebraic lattice, ortho lattice, complemented lattice, many in the paper of lattice. Just orthomodular lattice which satisfy either hands of the equivalence condition X belongs to Y implies Y subset X. Y commutative X is symmetric is called the orthomodular lattice. Subalgebra, any lattice L is isomorphic with the lattice L of all its principal ideal. If L is finite, then these are the subalgebra of A. LF relative to the boundary joint operation A join B and unary projection operation psi C such that A tends to A meet C. Hence, any finite complete lattice of sublattice is the subalgebra. Similarly, I define the ortholattice. The ortholattice is the lattice which is considered non-distributive algebra. Ortholattice is lattice which considered non-distributive analog of a Boolean algebra in which the universal bounded and a boundary operation A tends to A perpendicular satisfy A meet
A perpendicular is equal to O and A join A perpendicular is equal to I for all A. Just a property satisfies the property number 2. A meet B perpendicular equal to A perpendicular join B perpendicular. Similarly, A join B perpendicular equal to A join A perpendicular meet B perpendicular, and the perpendicular of A of perpendicular equal to A. Just like a complement, just a properties here belongs to satisfy like properties of complemented. A complement of A conjugate of A conjugate is equal to A union B complement is equal to A complement of A intersection B. Trivially, any ortholattice is the complement, and a distributive ortholattice is a Boolean algebra. The most familiar non-distributive ortholattice is that subspace of a finite dimension we write to A commute with V. Thank you. In this paper, I draw the structure of different types of properties with the help of Rutherford. Introduction of Lattice Theory by Rutherford, Ovier and Boyne publication book. Thank you, and thank you of whole team of Social Research Foundation. All right.